Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, semester 6 फंक्शनल एनालिसिस। लास्ट कल हमने लेक्चर में मीट्रिक स्पेसेस उसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल की डिस्कस किया था। आज का सेकंड लेक्चर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड एज यू नो मीट्रिक स्पेस any non-empty set X together with D is called a metric space. If D is a distance function and it has the basic three properties. Number one, that must be non-negative, and second one, that must be symmetric, and the third property is triangle inequality. So today we will discuss about Euclidean space, that is the Rn, with the set of all real n tuples or n coordinates for x1, x2 and up to xn, and y vector is equal to y1, y2, yn that has n components. N tuple means n components. And now we define function d naught on this Rn as follows. D naught of xy is a metric which is equal to the supremum of xi minus yi mod. So the question is that prove it that is a metric space, and we will verify its basic three properties. कि हमने तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो चेक करनी है। नंबर वन, उसने कहा कि ये नॉन नेगेटिव है, तो सुप्रीमम जो होता है किस चीज़ का वो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसके बगैर भी अगर चीज़ है वो भी पॉजिटिव है, तो देन ऑल एक्स आईज आर इक्वल टू वाई आईज। ये है आपके पास कि एवरी पॉइंट जो आपके पास उस सेट में लिया जा रहा है वो हर दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसके एलिमेंट होगा या वेक्टर है उसकी वैल्यू की इक्वल है। सो दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नंबर टू, सेकेंड वन, दैट इज रिफ्लेक्सिव। तो जस्ट चेंज द पोजिशंस ऑफ वेक्टर्स एक्स आई एंड वाई आईज, एंड द थर्ड इज एक्स वाई एंड टेक z three elements of Rn because we will prove its inequality, triangle inequality. So d naught of xz is equal to the supremum of xi minus zi. Now adding yi is subtracting and adding, so you call this is less than d naught of xy plus d naught of yz. So this is the third property. So this is d naught is a metric space, and the second example is C of AB. C of AB से मीनिंग ये होगी कि ऐसी स्पेस जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हों और डिफाइंड हों ऑन द इंटरवल AB. So for all fg belonging to C of AB, we define their addition and scalar multiplications. So f plus g of x, और ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। और फंक्शन जो होता है वो सम ऑफ टू फंक्शन इज अगेन फंक्शन, बिकॉज ऑपरेटर जो होते हैं ऑपरेटर्स को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई करें, वो उनकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो तो आपके पास रहेगी। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। नाउ डिफाइन अगेन फंक्शन। So D is a function x cross x to R which is metric, and x is the space of all continuous real valued functions. So all these properties and their this metric D of fg is defined again supremum of f of x minus g of x, where x belongs to this interval AB. So again we will prove its three properties. First, that is non-negative, second, that is the reflexive, and third one, that you have a triangle inequality एफ जी एच बिलोंगिंग टू एक्स। बेसिक पहले जो प्रॉपर्टी हैं वो ऑब्वियस हैं, क्लियर हैं, सिंपल फॉर्म। और M3 में अगर हम देख तो तीन फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, तो डी ऑफ एफ से एच का जो मीट्रिक है उसको आप देखेंगे विच इज़ इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, और इसमें जी ऑफ एक्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सुप्रीमम जब आप इसको सेपरेट करेंगे, अप्लाई करेंगे अलग अलग, तो ये लेस देन इक्वल की शक्ल में आपके पास आ जाएगा, विच इज़ द मीट्रिक डी ऑफ एफ जी एंड डी ऑफ जी एच। सो M3 is also satisfied, and this is the metric space. Then we have the again property metric space. Next example, the discrete metric space. Let x be
a non-empty set. Define D from X cross X to R as follows. D of xy is equal to 0 when X is equal to Y. अगर X और Y दोनों सेम पॉइंट हैं, दोनों एक ही जगह फॉल करते हैं, तो उनका डिस्टेंस 0 हो जाएगा. और अगर एक्स वाई डिफरेंट पॉइंट्स हैं लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, so their distance must be equal to 1. So it is the discrete metric which has only two values, 0 and 1. And 0, 1, if you look at the basic definition of metric space D from X cross X to R, so 0, 1 interval is also the subset of R. It can now easily be verified or defined that D is a metric. This pair X together with D is known as discrete metric space, and so again we can show its properties. So it is left for you and do it. So इस discrete metric space के लिहाज से भी M1, M2, M3 तीनों प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है. और इसमें ये गिवन आपके पास स्केच जो है वो आ चुका है. नोट की शक्ल में एक है कि अगर f फ्राम x to y be a function and a is any subset of x, so define a function g from a to y by g of a is equal to f of a for all a belongs to a. Then g is called the restriction of f to a and is denoted by f slash a. और यहाँ पे आइडिया कन्वे किया जा रहा है. बेसिकली टू टाइप्स फंक्शन जो हैं, एक होती है रेस्ट्रिक्शन, दूसरी होती है एक्सटेंशन. सिंपल फिजिकली लॉजिकल जो है ये अगर आप समझें तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बाउंड करना, उसके लिमिट्स जो हैं उनको कम कर देना. और एक्सटेंशन में आप देखते हैं कि उसके साइज़ में इजाफा कर देते हैं, इनलार्ज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं. तो उसने ये फंक्शन बेसिक लिया एक्स से वाई के अंदर, और अब x से कोई छोटा सेट आप ले लें और वही फंक्शन उसके लिए, लेकिन इसकी डोमेन रेंज जो है, रेंज सेट जो y है उस पर कोई फ़र्क नहीं होगा. सिर्फ आप क्या करेंगे, x जो उसका बेसिक डोमेन है उसका सबसेट ले लें. तो ऐसे फंक्शन को रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं. सो डिनोटेड बाय g of a and g of a is equal to f डिफरेंस a भी इसको पढ़ते हैं, f स्लैश a भी पढ़ते हैं. और देन फंक्शन f इज़ कॉल्ड, g जो है वो रेस्ट्रिक्शन है. और अगर कोई फंक्शन g जैसा कि a से y के अंदर है और a की बजाय अगर आप कोई बड़ा सेट ले लेते हैं तो फिर उसको एक्सटेंशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर डोमेन सेट में मैं सेट ऑफ रियल लेता हूँ और सेट ऑफ रियल की बजाय तो सबसे बड़ा सेट है, लेकिन अगर सेट ऑफ रियल्स की बजाय आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, सेट ऑफ और इवन कोई और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर एक उसका स्पेशल एक छोटा सेट ले लिया. सो दिस इज़ द रेस्ट्रिक्शन. और अगर मैं उससे बड़ा करता हूँ तो देन दैट फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगी. और एक्स डी अगर मीट्रिक स्पेस है, ये उसका सबसेट है, तो डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज़ इक्वल टू आर रियल वैल्यू फंक्शन. और डी डैश जो है वो ए डैश क्रॉस ए डैश टू आर है. और ये दो मीट्रिक डिफाइन किए हैं, डी डैश ऑफ ए बी एंड इक्वल टू डी ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू दिस. सो जस्ट आइडिया यहाँ पे जो आपको कन्वे करना है, समझने की बात है कि रेस्ट्रिक्शन एंड आपके पास एक्सटेंशन में क्या है. So this is known as A, the subset of X, restriction, and then extension. So this space is called restricted metric space of the whole metric space XD. Important results क्या हैं कि अगर XD आपके पास कोई metric space है for any x, y, z belonging to X, this is short questioning, and D of XZ minus D of YZ, इन दोनों मीटर का जो डिस्टेंस होगा उसका आप मॉड लेंगे, और विच इज़ ऑलवेज लेस दैन D of XY. प्रूफ में सर्टनली आपके पास तीन एलिमेंट लेंगे एक्स वाई जी, और इसको डिफाइन करते हैं डी ऑफ एक्स जी एज दिस इज ट्रायंगल प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई एंड डी ऑफ वाई जी. तो आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी है, और इसको वाई जी को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, नंबर 1 कॉल करें. इसमें अब कहता है एक्स और वाई जो 1 में है इनको चेंज कर दें.
यूज़ करें। और डी ऑफ एक्स वाई ये भी पता हमें कि डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया है, एक्स को वाई से बदला और वाई को एक्स से चेंज किया आपस में म्यूचुअली। तो इस तरह डी ऑफ वाई एक्स और यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया उसने, डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी। ये क्यों? बिकॉज जो आपने प्रूव करना है उसके अंदर डी ऑफ एक्स जी पहले है। और इस तरह नंबर 2 आपके पास आ जाएगी। और फ्रॉम 1 एंड 2 को कहता है कि अगर आप देखें 1 के और 2 के दोनों को कंपेयर करके, तो डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी मॉडुलस इज लेस देन डी ऑफ एक्स वाई, एंड सो इन दिस वे इट इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है आपके पास कि आपने डिस्टेंस फंक्शन पढ़ रखा है, दो पॉइंट्स का जो फासला या डिस्टेंस मालूम करते हैं, और उसमें डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट हेयर दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेटों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकाल सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। लेट a एंड b बी द एनी सबसेट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस, then the distance between a and b is denoted by d of ab and is defined as, this is the infimum of all those metric d of ab such that a belongs to a and b belongs to a। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कोई पॉइंट जो है वो सेट a का लेंगे, इसी तरह कोई पॉइंट जो है वो सेट b का लेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स का मीट्रिक जो फासला है वो यूज़ करेंगे, और फिर उन सारी वैल्यूज़ का जो है वो इन्फीमम एंड सुप्रीमम। तो इन्फीमम सुप्रीमम के दूसरे दो नाम आप वो भी जानते हैं। इन्फीमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, और सुप्रीमम जो होता है दिस इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। और इसलिए कोई सेट बाउंडेड हो तो उसको हम लीस्ट अपर बाउंड भी रखता हो, और GL भी जिसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये दोनों चीज़ें अगर पोजेस करता हो तभी आप उसको बाउंडेड कहते हैं। सो टेक इट examples and the distance between two sets.